Okay, good morning my dear students. In our last class we already discussed what is the triangle, definition, different type of the definition of triangle. In this class we discuss type of the triangle. Type of the triangle. Then in the type of the triangle, in our last class we discussed component of the triangle. Then you know that in component of the triangle there are two components. One is the angle and other is the side. Clear? Then the type of the triangle depend on the component of the angle. ठीक है? जो ट्रायंगल का टाइप होता है यह इस ट्रायंगल के कंपोनेंट पे डिपेंड करता है. तो अब इसके कंपोनेंट कितने हैं? दो. तो इसका मतलब इसके जो टाइप्स होंगे वही दो टाइप्स के मतलब एंगल्स पे डिपेंड करेगा और साइड पे डिपेंड करेगा. तो फर्स्ट टाइप ऑफ द ट्रायंगल इट इज फर्स्ट वन इज द अकॉर्डिंग टू साइड. अकॉर्डिंग टू साइड. साइड जैसे एक कंपोनेंट साइड होता है तो साइड के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ द ट्रायंगल. यू नो दैट in this figure it is P, Q, R. If all sides are same like this way, clear? Then it is the according to side type of triangle equilateral triangle. Equilateral triangle. Here, what do you mean by equilateral triangle? If all sides of triangle are equal. If all sides of the triangle are equal is called equilateral triangle. तो पहला कंपोनेंट क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. पहला क्या है टाइप? अकॉर्डिंग टू साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल. और इक्विलेटरल ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. कॉल्ड equilateral triangle. See, equilateral means equi and literal. Then equi means equal. It is the plural form of the equal. Equal का plural equi होता है और literal का मतलब होता है side. तो किसी भी ऐसे plane figure में which have the three side and all the three side are equal is called the equilateral triangle. Then after second one is the isosceles triangle. Isosceles. S-C-E-L-E-S. Isosceles triangle are, if we can expand it, then it is isoscale. Scale means side and iso means two. Clear? It means when two sides of a triangle are equal, it's called isosceles. Isosceles or isoscale. Clear? You pronunciate isosceles triangle. Isosceles triangle means if two sides of a triangle are equal. If two sides of a triangle are equal, called isosceles triangle. Two sides means these two sides are equal. Clear? It's called the isosceles triangle. Or we can make another figure. Like
it is A, B, C. This side AC and BC, AB and BC are equal. It is called the isosceles triangle. Third one is the scalene triangle. You already know because in 9th class the same topic we discussed in the class. Scalene triangle. Scalene triangle means no one sides of triangle are equal, called scalene triangle. If no one side of a triangle are equal is called scalene triangle. Like see, it is P, Q, R. Is a triangle. You see here side PQ, QR and PR are not equal. So it is the equilateral scalene triangle. अब देखिए ट्रायंगल जो है आप जानते हैं कि ट्रायंगल में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है साइड और दूसरा होता है एंगल. तो अब ट्रायंगल का जब टाइप हम बताएंगे तो एक होता है अकॉर्डिंग टू साइड. तो ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो हो सकता है कि तीनों साइड आपस में इक्वल हो. तो जब तीनों साइड आपस में इक्वल होगा तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. अब तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होगा तो स्केलेन ट्रायंगल होगा. और ये 3 साइड में से यह भी हो सकता है कि केवल 2 साइड आपस में इक्वल हो, तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. ठीक है, ये सारा टॉपिक आपको बताया गया है. अब हम सेकेंड कंपोनेंट इसमें क्या है? एंगल. ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल टाइप ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड टाइप ऑफ ट्रायंगल. एंड this one is the according to angle type of triangle. See, according to angle type of triangle. Here you know that sum of all angle of a triangle are 180 degree. ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है. एंड इन आवर प्रीवियस क्लास यू ऑलरेडी नो एंगल. क्लियर? देन देर आर सम टाइप ऑफ द एंगल लाइक एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल. क्लियर? देन each and every definition you already know which one is the acute, which one is the right, which one is the straight, which one is the obtuse. Clear? Then in a triangle you know that sum of all angle is 180 degree, and in the triangle there are 3 angles. Then type of triangle according to angle, the angle which is equal to or greater than 180 degree is not possible. Clear? It means the angle, the type of angle which is less than 180 degree is only possible. Then less than 180 degree means only acute angle, right angle and obtuse angle also, because you know that obtuse angle is greater than 90 degree and less than 180 degree. Then according to angle, first one is the acute angled triangle. Acute angled triangle. Acute angled triangle means
if all the angle of a triangle are acute, if all means 3, all the angles of triangle are less than 90 degree means, you know that if the angle are less than 90 degree, then it is acute. Less than 90 degree, then it is called acute angled ट्रायंगल. इसको क्या बोला जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा. मतलब ये किसी भी ट्रायंगल के जो सभी एंगल होंगे वो सब सेपरेटली 90 डिग्री से कम होंगे, तो वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा. ठीक है. अब दूसरा क्या होगा? राइट एंगल एंगल्ड ट्रायंगल. राइट एंगल्ड ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि इफ any one angle of triangle is exact 90 degrees and rest are acute angle is called right angled ट्रायंगल. क्या हो गया? आपको राइट एंगल ट्रायंगल का डिफाइन करना है, तो क्या हो गया कि किसी भी ट्रायंगल में कम से कम कोई उसका एक एंगल राइट एंगल हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर हो, और जो बाकी जब एक 90 डिग्री बराबर हो जाएगा तो जो बाकी जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, मतलब 90 डिग्री से कम होंगे, तो वो जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा. तीसरा जो है क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है. तीसरा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. इसका मतलब क्या हो गया कि इफ any one angle of a triangle is obtuse angle. obtuse angle का मतलब क्या होता है? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. इसी को ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है. इफ एनी वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड रेस्ट आर एक्यूट एंगल. जो बाकी रेस्ट मतलब एक यदि ऑब्ट्यूज हो गया तो रेस्ट माने दो, जो बचे हुए बाकी दो हैं वो कौन से होंगे? एक्यूट एंगल होंगे. called obtuse angled triangle. क्या बोला जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. अब देखिए एक्यूट एंगल का फिगर, यह जो है एक्यूट एंगल का फिगर है. इसमें जो भी एंगल बना है यह सब क्या है? 90 डिग्री से कम है. अब यह राइट एंगल ट्रायंगल है. यह इसमें एक एंगल राइट एंगल हो गया, बाकी जो है वह यह ए बी सी पी क्यू आर
ठीक है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये जो है आपका फिगर ए बी सी, यह 90 डिग्री से अधिक है, ठीक। और बाकी यह जो दोनों फिगर हैं, दोनों एंगल्स हैं, यह 90 डिग्री से कम है। तो इसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से अधिक, बाकी जो दो वो 90 डिग्री से कम। तो अभी इस सेगमेंट में हम पढ़े कि टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो यू नो दैट देयर आर फाइनली, if we don't say according to angle, according to side, then you say there are 6 type of triangle: equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle, acute angle triangle, right angle triangle, and obtuse angle triangle. And in the board examination, if it is possible, which type of question is asked in the MCQ type? How many maximum acute angle possible in a triangle? एक किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम कितना एक्यूट एंगल हो सकता है? देन यू से मैक्सिमम 3 एक्यूट एंगल पॉसिबल इन द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 एक्यूट एंगल हो सकता है, ठीक है। अब पूछा जाए हाउ मेनी मैक्सिमम राइट एंगल इन अ ट्रायंगल, तो आप कहोगे कि किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम 1 राइट एंगल हो सकता है। और ऐसे ही हाउ मेनी मैक्सिमम ऑब्ट्यूज एंगल इन अ ट्रायंगल, तो आप बोलोगे कि मैक्सिमम 1 ऑब्ट्यूज एंगल इन अ ट्रायंगल। हम यह बोले हैं कि आपसे पूछा जाए कि किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम कितना ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो आप बोलोगे कि मैक्सिमम 1 ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना राइट एंगल होगा, तो आप बोलोगे मैक्सिमम 1 राइट एंगल होगा। मैक्सिमम कितना एक्यूट एंगल होगा, तो आप बोलोगे कि मैक्सिमम 3 एक्यूट एंगल होगा। अब मान लीजिए पूछ दिया जाए हाउ मेनी मिनिमम एक्यूट एंगल इन अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में मिनिमम कितना एक्यूट एंगल हो सकता है, तो आप बोलोगे 2। मिनिमम कितना होगा? 2। किस केस में? राइट एंगल में और ऑब्ट्यूज एंगल में। राइट एंगल में एक 90 डिग्री का हो जाएगा, तो बाकी जो 2 बचे हैं वो एक्यूट एंगल होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, तो ये जो बाकी जो बचे हैं वो एक्यूट एंगल होंगे। तो अभी आपको इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको बताया गया। अब हमारा जो टॉपिक है वो सिमिलरिटी का है। तो सिमिलरिटी के पहले एक टॉपिक आता है कांग्रुएंसी, ठीक है। अब हम कांग्रुएंसी को भी रिवाइज करेंगे। तो अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो क्लास होगा वो कांग्रुएंसी का होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में कांग्रुएंसी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।